फ़ज़ाइल मबास मुइत्तबाई साहब आप गुजरावाला से कि वो मिंबर पाक पे तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا كما خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم والصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی یہ صفِ عذاب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. اتنے مصروف ترین دور میں آپ حضرات کا کام کاج گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں حاضر ہونا آپ کی ایک سانس پاک سیدہ کی نلین اطہر کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. جس گھر میں جس صحن میں جس ریڑے میں بادشاہوں کا ذکر جاری و ساری ہے پروردگار کم از کم مولا کے ظہور تک شاد و آباد رکھے. پروردگار جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان کی دلی حاجتیں پوری فرمائے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں تشریف فرما ہیں اس پرشوق دور میں پروردگار سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. بالخصوص زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخص ایسی صلوات پڑھیے کہ ماں حسین کی ہم سب پہ راضی ہو جائے. اجازت جناب اور شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. سارے ٹھیک بیٹھے ہیں یا ابھی تھوڑا آگے کروا لیں تاکہ کوئی تنگی ختم ہو جائے؟ ٹھیک بیٹھے بھائی آپ بھی دروازہ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان تھوڑا آگے آ جائیں گے تاکہ ذرا پیچھے وہ کوئی بھائی دھوپ میں نہ بیٹھے. مہربانی سارے سائے میں بیٹھے ہیں اور جہاں پہ اطمینان ہو آرام ہو. موسم ایسے آج کچھ بہتر ہے. نعرہ تکبیر. حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت. مل کے اچھا نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. یزید پلیت ولید پرید خبیث لعین ملعون پہ لعنت. پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت. بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت جناب مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے ناظم محمد صاحب سے پوچھا جو میرے آج کے بانی بھائی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ شاید پورے گاؤں میں یہ ایک ہی گھر شیعہ حضرات کا ہے باقی سارے ہمارے اہل سنت بھائیوں کا محلہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ گفتگو کوشش کر کے ایسی کی جائے جن میں اگر جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی محسوس کریں کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے کسی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہ یہاں کوئی ایسی بات ہوگی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. نہ کسی قسم کی لڑائی نہ فساد. ہم نے حق کا پیغام پہنچانا ہے اور یاد رکھیے جو نوکے سنا کا قاری ہے وہ جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں آیا. کوشش آپ مہربانی بھائی. گزارش اتنی ہے آپ سے. میں پہلے نماز عشق شروع کرنے سے پہلے میں ایز اے نوکر آپ کا مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب سے آخر پہ اس لیے رکھا ہے کہ مومنین کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے آخر پہ زیادہ محتبائی کو رکھا جائے تاکہ ہم اہل سنت کے گاؤں میں شان رسالت اور قرآن کو بڑے اطمینان سے سن سکیں.
रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर मेरी बात हक हो, सच हो, कुरान और 14 के मुताबिक हो, तो मेहरबानी ये करनी है कि आपने हक की तायीद में इतना बोलना है कि आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। ये मेरा हक बनता है या नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं बात शुरू करूँगा। ये जो बैठक में भाई बैठे हैं इनकी कुछ मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैं अपनी माओ बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी आवाज़ का भी पर्दा है, इसलिए मेहरबानी फरमाएं आपकी आवाज़ भी हम तक ना आए। और ये जो बैठे हुए भाई हैं आपकी कुछ का जरा किसी को समझ शोर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी, ये सारे बुजुर्ग भाई, नौजवान सदात गैर सदात, शिया सुन्नी भाई अपने सबसे छोटे नौकर को इजाज़त देते हैं। मैं बात शुरू करूँ। मौला आपको सलामत रखे। पहले सबसे ये बताइए कि ये क्या है? मेरे मोहतरम सामीन, इसने इंसानी ज़िंदगी को इंतहाई तेज़ कर दिया। मैं आराम से तमीज़ मानता हूँ, इतने में मेरी बहनें माएँ भी चुप हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। थोड़ी देर के बाद इतनी जल्दी तो ना बात मानती, वो आपको पता है। थोड़ी देर के बाद मान लेंगे इंशाल्लाह मान लेंगे। हमारी माएँ बहनें इज़्ज़तदार, और गुजारिश है कि आपकी आवाज़ ना है। मैं 2-3 मरतबा फिर तरला करूँगा, मान जाएंगी यार। आप मेरे को देखिए, पहले ज़माने में मेरे मोहतरम सामीन अगर कोई फौत हो जाता 2-2 दिन लग जाते पैगाम देते हो, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं सनेहा देते हो। चाचा जी, इसने इतना तेज़ किया कि अब अमेरिका बैठा हुआ बंदा आपकी एक उंगली की क्लिक आपके सामने आ जाता है। दुनिया में इसने ऐसी तेज़ी और तूफान बर्पा किया, मुगल साहब वही तेज़ी दुनिया से निकल कर, मैंने बिल्कुल ये महसूस नहीं करना कि बैकवर्ड एरिया है। मैं ऐसे पढ़ने लगा हूँ जैसे मैं कराची और लाहौर में पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसके दिल में अली है वो अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। मैं इल्मी मंडी से जाने लगा हूँ आपके सामने। मौला आपको सलामत रखे। इसने इतना तेज़ किया भाई कि अब वो दुनिया की तेज़ी दुनिया से निकल कर दीन में ऐसे दाखिल हो गई कि अब लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि मौलवी साहब इतना टाइम नहीं मेरे पास कि अगर मैं शिया हूँ तो मैं कौम जाऊँ, नजफ़ जाऊँ और पूरा दीन सीखूँ, अगर मैं सुन्नी हूँ तो मिस्र जाऊँ, बगदाद जाऊँ और पूरा दीन सीखूँ, अगर मैं अहले हदीस हूँ तो मैं सऊदी अरब जाऊँ और 15-15, 20-20, 25 साल लगा के मैं पूरा दीन सीखूँ। अब तो नेट का दौर है, मेरा कह नेट का दौर है, सिम का दौर है। अब तो जल्दी से बताइए क्या पूरे कुरान में, भाई नौजवान भाई आपका साथ आइए, क्या पूरे कुरान में ऐसी कोई एक आयत है कि आयत एक हो दीन पूरा हो? मौला आपको सलामत रखे। भाई मेरे साथ बोलिएगा भाई, नौजवान भाइयों, बुजुर्ग, मैं हैरान हूँ कि बुजुर्ग सारे बोल रहे हैं और नौजवान एक भी चुप रहा तो उनको दुख होगा। सारे बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद है वो अपने पुत्र के साथ ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। नौजवान पीछे रह जाएगा, फिर दुख करना मेरा हक बनता है। क्या पूरे कुरान में कोई ऐसी एक आयत है? मैं से फ्री पढ़ूंगा, 15 मिनट कहेंगे 15 मिनट पढ़ूंगा, 1 घंटा 15 कहेंगे 1 घंटा 15 पढ़ूंगा। जितना आपका ज़र्फ है, आपकी मिजाज है, आपकी तबीयत होगी, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या पूरे कुरान में भाई ऐसी एक आयत है? आपको पता है शीयों पे एतराज़ शुरू यहाँ से होता है, ना इन्हें कुरान आता है, ना ये सहाबा को मानते हैं, ना इन्हें रसूल की इज्जत का पता है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे पढ़ूंगा आपके सामने और अपने भाइयों की किताबों से पढ़ूंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ जा रही है। मेरे पढ़ने के बाद नाखून बराबर शक निकले, अपने रोड पे उल्टा लटका के मेरे मत्थे में 6 गोलियां मारो। मैं माइक पे मुंह ढक के कैमरे के सामने कह रहा हूँ मेरा कत्ल माफ़ है। अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो हमारे भाइयों की किताबों में दर्ज ना हो, आप सर उठाइए और जुमला सुनिए। क्या पूरे कुरान में कोई एक ऐसी आयत है कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो? ये तेजी किसने की? इसने। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, परवरदिगार तेज दौर के तेज लोग पूछते हैं ऐसी आयत है कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो? अल्लाह की आवाज़ यकीन लाएगी जाएगा मुश्तबाई। आयत मैं बाद में बताता हूँ, पहले इनकी तेजी सुन ले। जिसने मोबाइल बनाया है ना उसे मैंने बनाया है। मेरे साथ बोलेगा मौला आपको सलामत रखे, साथ में बोलेगा अल्लाह आपको सलामत रखे। जिसने बिस्मिल्लाह करा, जिसने मोबाइल बनाया है ना इसे मैंने बनाया है। चाचा जी मुझे पता है कल को बड़े बड़े तेज लोग आएंगे और वो आके पूछेंगे जी क्या कुरान में कोई एक आयत ऐसी है कि आयत एक हो, 2 नहीं 1 हो और कुछ ना बचे।
پورے کا پورا مکمل دین اس ایک آیت میں بند ہو جائے. کیا کوئی ہے؟ لو جی آیت عربی زبان میں پڑھوں گا کیونکہ عربی میں قرآن آیا ہے. سورت کا نمبر بتاتا ہوں, آیت کا نمبر بتاتا ہوں, زیر زبر میں فرق نکلے جو چور کی اصلاح میری. پھر بھی کوئی سن کے نہ مانے, وہ جانے شاہ جانے تو راہ جانے. میں نے بددعا نہیں دینی, نہ میں نے گالیاں نکالنی ہیں. یہ نماز کا ممبر ہے, یہ عزت و تہذیب کا ممبر ہے. آگے میں پڑھنے لگا, پہلے اگر سن لیجیے سورہ حشر. کیا قرآن میں بیٹھ جاؤ, کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ پڑھ قرآن سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن پہ بولتا ہے, کیونکہ صرف آپ کا امام ہے جس نے بغیر جسم کے موقع نظر پہ قرآن پڑھا تھا. اس لیے ہر شیعہ پہ واجب ہے وہ قرآن کے بعد پہ ہی بولے. مالک کون سی آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا ان حلالیوں کو بتا دے پورا دین یہ ہے, محمد جو دے اسے لے لے. بھائی خدا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. بسم اللہ کرا دی. اللہ میری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرا, ماحول بہتر ہو گیا, جی خوبصورت ترین ماحول ہو گیا. مکمل دین یہ ہے. آپ کی کیا بات ہے بھائی, قرآن پہ بولنے والے جی ہیں. مکمل دین یہ ہے کیا؟ محمد صدقے جاوا, محمد جو دے اسے. چاچا جی میرا نبی جس سے روکے اس سے, بس یہی دین ہے. پروردگار یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ تو مولا حسین نے ڈیوٹی لگائی ہے. کوئی یہاں بیٹھتا ہے, کوئی یہاں بیٹھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے 10,000 گنا بہتر ہیں. میں ایک ذاکر ہوں, ان کے اندر ہزار ذاکر کی مجلس ہے. سخی حسین کے ممبر کا صدقہ یہ مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے لوگ ہیں. میں نے پوچھا مکمل دین کیا ہے؟ تو نے کہا محمد جو دے اسے لے لو. اللہ معاف کرنا, میں ان کا مشترکہ نوکر ہوں. میں نے تو دیکھا قرآن سے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا, ایک بہت بڑا میدان تھا, ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جس میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا, فلانوں کا ممبر تھا. ایک بڑے سید نے چھوٹے سید کا بازو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. اور تم نے اس دن قرآن میں کہا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمت تمام کر. دین تو اس دن مکمل ہوا تھا جس کی ماں شیعہ ہے کنوسی نہ کرے. اللہ کے وعدے زیادہ مجتبائی, کل کی بارش پڑی ہے, آج تو موسم اچھا ہے, تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہی تو کہہ رہا ہوں, محمد جو دے اسے لے لو. خدا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا دی. جی بسم اللہ کرا, تیری جوانی سلامت, آخری علی تک ہر بھائی. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میرا نبی صدقے جانا, میرا نبی جو دے اسے. یہ قرآن کی آیت ہے. جتنا وقت آپ کہیں گے 15 20 25 40 منٹ جو آپ کہیں گے, جتنا میں نوکری آپ کے لیے تیار ہوں. مہربانی یہ کرنی ہے, آپ نے میرے ساتھ 2-3 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے. ایک مرتبہ مل کے پڑھیے جی. میرا نبی جو دے اسے, مولا آپ کو سلامت رکھے. عزت کا ممبر ہے, علم کا ممبر ہے, تمیز کا ممبر ہے, تہذیب کا ممبر ہے. آرام سے پڑھوں گا, آپ نے آرام سے سننا ہے. آج بھی جب ہمارے اہل سنت اور اہل حدیث علماء کرام جمعے کے خطبے میں حضرت عمر کا ایمان بالتوحید پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ پڑھتے ہیں. کون سا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے, عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا زیارت کے لیے, وہاں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. میں اسے چوم کے آیا ہوں, اللہ آپ کو بھی لے جائے. اسے چومنا سنت رسول ہے, ثواب ہوتا ہے. ویسے میں نے اسے دور سے چوما تھا, رش پڑا تھا, اور وہ جو لکیر ہے نا اسے میں نے 72 بار چوما ہے. جو لکیر ہے نا کعبہ میں, اسے میں نے بڑی مرتبہ چوما ہے. ہاں, اس کے بعد میں نے تصویریں بنائی تھی. اللہ آپ سب کو بھی لے جائے, اللہ آپ کو لے جائے. آپ جا کے دیکھیں کہ اللہ کا گھر علی کا استقبال کیسے کرتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا, یار یہ بڑا سنا ہے کہ تاریخ کعبہ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے کیمیکل آئے, بڑے بڑے انجینئر آئے, بڑے بڑے سائنسدان آئے, لکیر بند نہیں ہوتی. تو ذاکر ہے, مولا کا کوئی چکر کا پتہ ہے تجھے چکر کیا؟ میں نے کہا یار چکر کیا ہونا ہے, عبادت کی جگہ چکر کا لفظ استعمال کرنا بیوقوفی ہے. چکر کیا ہونا ہے؟ صرف اللہ یہ بتا رہا تھا, جاہل کے بچوں, جب سارا زمانہ مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, علی کی غدیر کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ سب کے نام کے ہاتھ میں سلامت رکھے. اونچا نعرہ ہے نبی. جی بسم اللہ کرنا. ایک بار میرے ساتھ قرآن پڑھیے تاکہ موضوع کا آپ کو سمجھ آئے. میں نے پھر آگے بڑھنا ہے. ایک مرتبہ مل کے پھر پڑھیے. میرا محمد جو دے اسے, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ فرماتے ہیں, علماء اہل سنت علماء اہل حدیث فرماتے ہیں, جب بھی حضرت عمر کعبہ کے اندر داخل ہوتے
तो हाजर पत्थर अस्वद काला ब्लैक स्टोन, तो काले पत्थर को हजर अस्वद को चूमने से पहले ये उलमाए इस्लाम कह रहे हैं एक काम करते, एक बात कहते हैं, कौन? हजरत उमर कहते कि ए पत्थर, आई नो, मैं जानता हूँ तू जस्ट एक पत्थर है, ना तू फायदा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। मैं उमर तुझे इसलिए चूमता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल तुझे बोसे दिया करते थे। अगो मजमा अंदर सुभान अल्लाह। मौलवी साहब अगली बात भी तो प्यार से बताना, जब हजरत उमर ये कह रहे थे कि तू एक पत्थर है, ना फायदा देता है ना नुकसान करता है, गाजी का पाक बाबा अली आगे बढ़ा, हजरत उमर के कंधे पे हाथ रख के कहा माजा कुलता या बना खताब, ए उमर ये क्या कह रहा है? अगर ये फजूल होता तो हमने उसे चुनते क्यों थे? हाय हाय, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। उसे मौला ने जुबान इसलिए दी है कि मुझे अली में बोले, उसे बोलना चाहिए जी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा। ए उमर याद रख, ये पत्थर फायदा भी देता है नुकसान भी करता है। ऐसा प्यारा मजमा हो, समझदार मजमा हो, ना बानी पे पर्चा होता है ना जाकर पे ना पाबंदी लगती है, क्योंकि इज्जत के साथ तमीज के साथ पढ़ो, हक पढ़ो, कोई कुछ नहीं कहता। रुमाल रख के मैं बात करूंगा, हर हलाली समझ जाएगा। हजरत उमर कहते हैं या अली, रुमाल रख लगा जी, अंदर की बात आप लोगों को समझ नहीं है या अली फायदा भी देता है ये पत्थर, हाँ नुकसान भी करता जाता है ये पत्थर, कहाँ कैसे? कहा मैं अली ने पाक रसूल की उस जुबान से सुना जो गमा यंत की मोहर रखती है, जिस जुबान से अल्लाह बोलता है, उस जुबान से मुस्तफ़ा ने फरमाया कयामत के दिन, रुमाल के अंदर कैसे समझेगा, कयामत के दिन यही पत्थर अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होकर गवाही देगा कि इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जनती भी है, इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, जिसे मौला ने हाथ इसलिए दिया है कि वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में बोले पूरी को है तेरी जवानी सलामत है। तो मेरे मोहतरम सामने हमारा मौजू क्या है? एक मरतबा हर हलाली मवाली मिल के मेरे साथ बोल दे, हमारा मौजू है मोहम्मद जो दे उसे अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मुझे ये बताइए, मैं चूंकि आपका सबसे छोटा नौकर हूँ इसलिए मेरे पास इल्म तो नहीं है, मैं तो आपसे सवाल कर करके आपसे इल्म लेता हूँ। मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम सामीन, जब पाक शब्बीर की महिल से अज़ा का इनकाद होता है, ये शामियाना ये टेंट वगैरह लग जाते हैं, माइक ऑन हो जाता है, साउंड ऑन हो जाता है, कैमरा लग जाता है, 4-5 मोमिन आते हैं, वो बैठते हैं, शुरू जब महिल होती है, एक बंदा जो मेरी तरह का मस्कीन आदमी होता है वो आता है मिंबर पे, उसके हाथ में एक छोटी सी किताब होती है, वो ऐसे खोलता है और को 15-20 मिनट अरबी में कुछ पढ़ता है, तो फिर मजलिस शुरू होती है। वो क्या होती है? अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको। हदीस के साथ आता थी, हदीस का माना बात, किसा का माना चादर, यानी कोई चादर वाली बात थी जिसे मिंबर पे बयान किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे मोहतरम सामीन, लोग कहते हैं शिया सहाबा किराम को नहीं मानते, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि वो जो हदीस किसा है जिसके बाद अज़ादारी शुरू होती है, वो हदीस किसा शुरू किस नाम से होती है? सदके जावा चाचा जी, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। यहाँ से शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, यहाँ से शुरू होती है। जनाब जाबिर जो सैयदा पाक ने अपने कसीदे का जाकिर मुंतखब किया है उसे कहता है जनाब जाबिर। अब मैं आपसे सवाल करके पूछता हूँ, ऊंची आवाज में बताइए, क्या जनाब जाबिर नबी है, रसूल है, पैगंबर है, इमाम है, क्या है? अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब है जाबिर सहाबी है। हदीस के साथ शुरू होती है सहाबी के नाम से। हदीस के साथ के बाद मुझ जैसा कोई 2% का मस्कीन आदमी जाकिर आता है, वो आके तौहीद पढ़ता है, वो रिसालत पढ़ता है, वो इमामत पढ़ता है, वो विलायत पढ़ता है, वो मौला महदी की यादत पढ़ता है, वो क़यामत पढ़ता है, वो ज़ंजीर पढ़ता है, वो मातम पढ़ता है, वो शबीह ज़ुलगना पढ़ता है, वो कुरान से बताता है अलम किसके हाथ में था, अलम किसके हाथ में होगा, मोहम्मद ने किसे कहा था, अलम कहाँ है, ताज़िया कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ आयत विलायत से लेकर मातम शबीर तक चाचा जी हर चीज शुरू होती है अज़ादारी हुसैन में, और अज़ादारी शुरू होती है हदीस किसा के बाद। हदीस किसा शुरू होती है जाबिर के नाम से। इसका मतलब है कुत्ता है वो मौलवी जो कहता है शिया सहाबा को नहीं मानते। मौला आपके हाथों में सलामत रखे। वो बकवास करता है जी, वो बकवास करता है, वो लड़ाई डालता है। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। भाई
مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی ہمارا تو پورا دین شروع ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا مجھے یہ بتائیے پاجی 100 زیادہ ہوتا ہے کہ 1000؟ پکی بات ہے. میں ایک لعنت کروں گا 100 بار, ایک لعنت میں استعمال لفظ کروں گا 1000 بار. جنہوں مزہ آئے ہو بولے باقی نے چھٹی. سن لیا آپ نے؟ میں کہتا ہوں آرام نہ سنو. حالانکہ میرا حق بنتا تھا میں سانس لینے کے بعد جملہ کہتا تاکہ داد زیادہ آتی, لیکن مجھے آپ پہ یقین ہے, آپ کی معرفت پہ یقین ہے, آپ مجھ سے بہتر ہیں, اس لیے آپ جلدی بات کو پک کرتے ہیں. کافر کافر شیعہ کافر کیوں مولوی صاحب؟ صحابہ کو نہیں مانتے مولوی صاحب. شیعوں کا سب سے 2 ٹکے کا نوکر مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا آواز نکل جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو کیا نام ہے جی؟ حدیث قصاص کے ذاکر کا نام کیا ہے؟ حضرت بھائی جو حلالی 2 منٹ کے لیے خاموش ہوئے تھے ذرا میرے ساتھ وہ بھی بولیے. حدیث قصاص کے ذاکر کا نام کیا ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا اب یہ تو طے ہو گیا. اب میں نے قصیدہ شروع کرنا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ نے سننا ہے. قصیدہ میرا اب شروع ہوا ہے. کریں گی؟ ایک نعت کا ٹکڑا ہے, اگر جناب کو آتا ہے تو میرے ساتھ لیجیے, اگر نہیں آتا تو میں دہرا دوں گا. نعت اس طرح ہے کہ میرے گھر بھی ہو جائے, جس کا مطلب ہر حلالی کو یاد ہے. آپ کو پتا ہے یہ نعت سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی, میں بتاتا ہوں. پہلے کتاب کا نام سننا ہے, مدارج النبوہ, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی. مینار پاکستان جو لاہور میں کھڑا ہے نا, اس سے بڑا نام ہے علماء اہل سنت میں شاہ عبد الحق کا. اور کتاب کی حجم کتنا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے, شاید 2 کلو سے بھی زیادہ وزن کی ہوگی. یعنی اگر بندہ کسی کو ایسے سر میں مارے تو مر بھی سکتا ہے. اتنی کمال کی کتاب ہے یہ, اور وزن میں کافی صفحات شاہ صاحب نے لکھے ہیں. اس میں یہ واقعہ نہ ہو جو چور کی سزا میری. میرے گھر بھی ہو جائے. چاچا جی لکھا ہے جناب جابر یوں بیٹھتے سرکار ممبر پہ درس سنتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ اس پاک ذات کو کہتے ہیں جس کے ایک طرف سے قرآن نکلتا ہے, ایک طرف سے حدیث نکلتی ہے. یوں سرکار نے لیکچر کو روکا. لیکچر روکنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں جابر ایسے لگتا ہے جیسے تو کچھ مانگ کے جا رہا ہے, کچھ مانگنا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا بادشاہ جی آپ جیسے ظاہر میں سچے ہیں ویسے اندر سے سچے ہیں. جو آپ کو لگ رہا ہے بادشاہ جی گل انجی ہے, میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. لو جی شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. شیعہ کیوں کافر ہیں؟ یہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں, نبی پاک کو تھوڑا استغفر اللہ. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد علی ولی اللہ. ترتیب بتا رہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے بعد علی کو مانتے ہیں, اور علی کو تو مانتے ہی اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس لیے مہربانی کر کے ہر حلالی بولے میں کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا جابر کچھ مانگنا ہے؟ ہاں. فرمایا پھر مانگ, جھجک مت مانگ, میں علی کا بھی مولا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں مصطفیٰ بسم اللہ کریں, میں مصطفیٰ علی کا بھی, یار سارے بولے میں مصطفیٰ علی کا بھی. کا بادشاہ جی آپ کے مولا ہونے کی قسم, نہ پیسے چاہیے, نہ کپڑے چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ سونا چاندی چاہیے. فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا بادشاہ جی بس ایک ہی خواہش ہے. بولو کون سی؟ کہا بادشاہ جی میرے گھر بھی ہو جائے. اور تو سن کے جاوا کیا کمال کا مجمع ہے جی. میرے گھر بسم اللہ, میرے گھر بھی ہو جائے. بس یہ چاہتا ہوں کہ پاک سید کی پاک جوتی میرے بیڑے میں لگ جائے. چاچا جی نام لینے سے فرق نہیں پڑتا, میں نام نہیں لینا, آپ ہی سمجھ جائیں گے. ایک بندہ آ گیا کہتا ہے جابر جب تو ہر روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تینوں سیاپا کی میں آ گیا روز کوئی گل. سرکار میرے بھی گھر آئیے, میرے بھی گھر آئیے, جس کا عقیدہ مجھ سے ملے بلند آواز سے اپنے اہل سنت بھائیوں کو پیغام دیجئے بول کے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. جناب جابر کہتا ہے چپ کر, میرا بھی جی چاہتا ہے میرا بیڑا عرش بن جائے. سب کے جانا چونکہ جہاں بطول کے بابا کے جوتی ماں سوڈا اور شہزہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا جب بھی کہتا ہے سرکار مت جابر ابھی میں تھوڑا بسم اللہ کرا, اللہ آپ کو سلامت رکھے جابر ابھی میں ذرا بیزی ہوں, میں مصروف ہوں, جیسے ہی ٹائم نکلتا ہے میں تیرے گھر میں آؤں گا. جناب جابر گھر پہنچے, مصلی بچھایا. کہتا جی جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بزرگوں سے سنا بھی ہے, حدیثوں میں پڑھا بھی ہے. یاد رکھیے میرے محترم سامعین, کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ جسو سرام. جسو سرام والوں یہ رونے سے نماز باقی ہے.
सुन लीजिए, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है। दो किस्म के रोने ऐसे हैं जिनसे नमाज असली नमाज बन जाती है, एक खौफ खुदा, एक गम हुसैन। ये दो ऐसे रोने हैं जिनसे नमाज बिस्मिल्लाह कहते हैं, जिनसे नमाज असल नमाज अर्श के ऊपर चली जाती है। अच्छा, इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद में रोना, इससे बड़ी नमाज है ही कोई नहीं। अगर बंदा नमाज की हालत में चौदह के इश्क में, मोहब्बत में और उनके गम में रो पड़े, समझो नमाज कबूल हो गई। और जिसकी एक भी कबूल हो गई, खुदा की कसम उसका जन्नत में घर बन गया। ये रसूल का वादा है, एक नमाज जिंदगी कबूल हो गई वो बंदा जलती है। सर उठाइए और जुमला सुनिए आंख पर से, मालिक मेरी ख्वाहिश तो यही है ना कि तेरा भी मेरे बेड़े में आ जाए, और वो है सच्चों का सच्चा, झूठ उनके करीब से नहीं गुजरा। वो जो कह रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, इसका मतलब बिजी है। मेहरबानी फरमा कोई ऐसा जुमला दे कि मैं वो जुमला जाके सैयद की बारगाह में पेश करूं और नबियों के सुल्तान उसी वक्त कहे, जा जाकर मोहम्मद आज ही तेरे घर आएगा। बस आंसू निकले, दुआ कबूल हुई, जुमला मिला। जनाबे जाबर ने मुसल्ले को तय लगाई, जानमाज उठा के इंज रखा, भागते हुए मस्जिद में आए, पाक सैयद के पाक कदम चूमे, गुलामों की तरह रसूल के सामने खड़े होकर जुमला कहा। अब मैं चेक करता हूँ कि रसूल के गुलाम, हुसैन के सुनने वाले, हुसैन के मानने वाले उस जुमले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक जुमला कहा, सरकार फरमाया आज ही होना, आज ही। जुमला क्या था? हाथ जोड़ कर था, या रसूलल्लाह मेरे घर आइए ना, आप उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। मौला आपकी आंखों पर रहम फरमाइए, ये मार्फत के आंसू हैं जी, ये फजाइल में रहना मार्फत के आंसू हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या रूहानियत है जी, किसी 2% के ज़्यादा में इत्तबाई ज़ाकिर का कमाल नहीं है। ये बानी की नीयत है, ये मेरे मोहतरम सामीन की नीयत है, खलूस है। हमारा कोई कमाल नहीं, हम तो दुनियादार लोग हैं, आए और बहुत सारी न्याज़ें लेके चले गए। ये असल में आपकी बरकत है कि ऐसे लग रहा है जैसे भाई इसमें रूहानियत है। मैं कह रहा, मैं नौकर जनाब, मैं नौकर जनाब। अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाई, मैं नौकर हूँ। मैं फिर कहता हूँ, फरमाया मेरे घर आइए, आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, कुरान कहता है भाइयों, कुरान कहता है, मोहम्मद नहीं बोलता, वमा यंतिक, अल्लाह बोलता है। कुरान कहता है, मार रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न रमा, किसी को मारना हो तो मोहम्मद नहीं मारता, अल्लाह मारता है। यानी मुस्तफ़ा की जुबान भी अल्लाह की। और भाई कुरान कह रहा है जब मोहम्मद बोलता है तो मोहम्मद नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है। और भाई मुझे कुरान की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, कुरान कहता है जब मोहम्मद बोले तो मोहम्मद नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है। जब मोहम्मद किसी को कुछ मारे तो मोहम्मद नहीं मारता। तो फिर मेरे साथ मिलके सारे बोलो ना, जब मोहम्मद किसी की इज्जत में खड़ा हो तो मोहम्मद नहीं होता, अल्लाह होता है। मौला आपको सलामत रखे। ये हुक्म खुदा से होता है भाई, अल्लाह की रज़ा के बगैर मेरे मुस्तफा कुछ भी नहीं करते। बिस्मिल्लाह दादा जी, ये आपने फरमाया था, फिर क्या उसे मैंने कहा, हाँ इतना बड़ा वास्ता तूने सैयदा का वास्ता दे दिया, इतना बड़ा वास्ता, जा आज ही मैं तेरे घर आऊँगा। क्योंकि ये वो वास्ता है ना अल्लाह टालता है ना मुस्तफा टालता है। अच्छा बादशाह जी आज ही आएंगे फरमाया। हाँ तो पाक सैयद लाजपाल बादशाह जी, फिर मेरा मतलब है कि मैं कुछ लंगर से बनाऊँगी। मैं हाँ तो लंगर तैयार कर, मुस्तफ़ा आज तेरे घर में आएगा। चौथे कदम पे जनाबे जाबर पहुँचे, पाक रसूल ने आवाज़ दी, बिलाल जी सैयद। सारे बोला भाई, फरमाया ऐलान कर दे, पूरा पिंड जाबर के घर जाएगा। सदके जाना 2-4 बंदे ने चाचा दी मेहरबानी, अल्लाह आपका साथ सलामत रखे। 2-4 बंदे ने चाचा दी पूरा पिंड जाएगा। जनाब जाबर घर पहुंचे, बीवी किचन में थी, रोटियां बना, और की भी करनी है, क्या रोटी बना रही हूँ अपने लिए, छोड़ दे यहीं पे छोड़ दे। कहते हैं जाबर क्या बात है, जब से तेरे साथ शादी हुई है 15-18 साल हो गए, मैंने ये खुशी आज तक तेरे चेहरे पे नहीं देखी। कहता चलिए आज मुझ जैसा कोई नहीं, आज दारैन में मैं बेमिसाल बेमिसाल हूँ। उसने कहा हुआ क्या? कहता चलिए आज मेरे बेड़े में वो आ रहा है जिसकी जुत्ती का सदका कायनात खाती है। आए मैं मरा हुसैन के नाना कहाँ, हमारे घर कहाँ, मिस्कीन के बेड़े में नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह। अच्छा एक बात तो बता जी, पूछे पढ़िए लोग के घर में कुछ है? वो इशारा कर कहती है कि एक बकरा, एक दुम्बा लेला, इसके अलावा जनाब जाबर का रंग हो रहा। अभी तो बड़े खुश थे, बकरे का नाम सुन के क्या हुआ,
کہا وہ جب میں کہہ رہا تھا نا کہ بادشاہ میرے گھر آئیے تو بادشاہ نے کہا تھا پورا پنڈ جائے گا تے بکرا ہے کہ پورا. وہ کہتی ہے ہوا کیا جن کی داڑھی سفید آنے 40 سے اوپر ہیں ان میں سے ایک مومن بھی چپ رہا قبر تک گلا میرا حق بنتا ہے. ہو سکتا ہے نوجوانوں کو سمجھ نہ آئے, بڈھا بابا ایک بھی چپ رہا تو رہا پتر میں دکھ رکھنا ہے. میں پہلے دس دیا کہا کیا بات ہے, وجہ کیا کہتا ہے پڑھیے لو. کہ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں. کوئی خدا آپ کو سلامت رکھے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جسے جنگ خیبر یاد ہے وہ تو بولے گا نا نہیں بھائی. شکریہ. حیدری کا بکرا ایک تے پورا. کہتی بات کیا کہتے پڑھے لو کہ بات یہ ہے میں بندہ ہوں, میں مرد ہوں, میں پریا پچھان میں جاتا ہوں, میں باہر اٹھتا بیٹھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب انسان دعوت کرے کسی کی, انوائٹ کرے, دعوت کرے بھائی, روٹی پکائے, روٹی کم پڑ جائے کہ مجھے یہاں تھوڑ گئی روٹی تو انسان کی عزت پہ حرف آتا ہے. لنگر کم پڑ جائے تو بےزتی ہوتی ہے. چاچا جی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس فکرے پہ ہر بھائی جتنی اس کے پھیپھڑے میں طاقت ہے کنجوسی نہ کرے ضرور بولے, کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے, مرد کی عقل کامل ہے. میں ممبر حسین پہ باوضو بیٹھا ہوں, مجھے ماتم شبیر کی قسم ہے لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اتنی عقل کی بات نہیں کر سکتا جتنی عقل کی بات اس عورت نے عورت ہو کی ہے. اس کی جُتی پہ میرے کروڑوں سلام. کہتی ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے پڑھیے لو کہ بندہ دعوت کرے روٹی کم پڑ دے بیچتی ہے, مجھے عزت کا خطرہ ہے. کہتے ہیں چپ کر. ڈر کیسا, وہ آیا ہی اس نے بچانے کے لیے. سب کے نام مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا ناجپال بادشاہ جی سب کے نام, وہ تو ناجپالوں کا ناجپال ہے, وہ تو دنیا میں آیا ہی اس نے بچانے کے لیے. تو فکر کیوں کرتا ہے؟ جب سید نے کہا میں آؤں گا تو آنے دے. کہتا ہے گل تو تیری ٹھیک ہے, صحیح تو نے کہا, اچھا چل ایسا کر, چل کھول کے لا. بھائی وہ بکرا کھول کے لائی. جناب جعفر نے اسے لٹایا, بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر. چاچا جی تکلیف ڈالی, کھال اتاری, بھائی پیسز کی یہ بوٹیاں بنائیں اور اسے ایسے پرات میں رکھ کے نا دھو کے پرات میں رکھ کے کہتا ہے یہ لے کچن میں لے جا اور آج ہانڈی روٹین والی نہیں بنانی. کہتی ہے آج کیا کرنا ہے, تینوں سمجھ آئے؟ کہتا ہے ڈوئی ہلاتی جا قرآن پڑھتی جا, کیونکہ آج میرا وہ سید آ رہا ہے جس کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے. چاچا جی وہ کچن میں چلی گئی, اس نے یہ طاہرہ کو پتیلا کی ڈوئی ہلانی شروع کر دی. بیٹا جو چھوٹے بچے پتر بیٹھے ہیں, یہ جتنے بڑے ہیں ان کو سب پتا ہے, یہ ثواب کے لیے آتے ہیں, میلسی ہوتی ہیں آپ کے لیے, آپ نے کچھ یاد کرنا ہے. ان بڑوں کو سب پتا ہوتا ہے, بیٹا آپ نے غور کرنا ہے. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا جی ایک بچہ تھا 8 سال کا, ایک تھا 5 سال کا. یہ دونوں بچے چاچا جی دونوں بچے نکر پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ابا ذبح کیسے کرتا ہے. جیسے جناب میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں, جیسے جناب جابر نے بکرا ذبح کیا, بھائی جان بڑے بھائی نے چھوٹے کو چھت پہ لٹا کے ذبح کر دیا, مار چھڑیا جی بھائی, قتل کر دیا. بڑے بھائی نے چھوٹے کا گلا, میں نے اس لیے آپ کو پہلے حوالہ بتایا تھا تاکہ شیعہ بھائی مجھ پہ یقین کر لیں, سنی بھائی جا کے کتاب دیکھ لیں واقعہ ہے یا نہیں, مطمئن ہو کے سنیں. جیسے قرآن سچا ہے ویسے یہ روایت اور حدیث سچی ہے, مطمئن ہو کے سنیں. بڑے نے چھوٹے کا گلا کاٹ دیا. کچھ دیر کے بعد ماں کو کوئی کام تھا, جیسے یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ایسے, اور کوئی ختم اوپر جائے گی تو اس کی جوتی کو آواز تو آئے گی نا. تو ماں کی ٹک ٹک کی آواز جب سنی نا تو بڑا اپنے آپ سے کہتا ہے میں نے تو بھائی کو مار ڈالا. اماں آ گئی, اس نے پریشر میں آ کے چھت سے چھلانگ گئی, جیسے یہ آپ کا بیڑا ہے اور وہ چھت ہے, وہ بھی مر گیا. یعنی بچے کتنے تھے؟ اور 2 کے 2. ماں نے بال کھولے, ہائے میں مر گئی, میرے 2 ہی تھے, میری دنیا اندھیری ہو گئی, مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, میرا تو جہان ویلا ہو گیا. ایک ماں کی گود اجڑ گئی, اس کے بعد اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے. ایسا صحابی ہے تو لا, ہم اس کی جوتی چومنا بھی عبادت سمجھتے ہیں. جب ماں نے بیٹھ کے نا ہائے میں مر گئی, کہتا ہے میرے بنے اچھی دعا فرمائی دے, ہائے میں مر گئی. جناب جابر رضی اللہ کیا ہوا؟ سردار دونوں مر گئے, دونوں مر گئے. میں اتری, میں خاموش, تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے, میرا محمد آ رہا ہے. سب کے جانا اسے صحابی کہتا ہے, بھائی یہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے اسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو, جس میں اللہ راضی ہو. فرمائیے تو 2 ہیں, 2000 بھی ہو تو حسن حسین کے نانے کی جوتی پہ قربان. اچھا تو کیا کروں؟ کہا پہلے آنسو صاف کر, پھر بال ٹھیک کر, پھر کل دونوں لاشیں اٹھا.
वो सामने कमरा है, उसमें डाल, लाशें बेड पे लेटा, ऊपर कपड़ा दे, बाएं से कुंडी लगा, सीधी किचन में जा और जाके शुरू हो जा, ये ताहिरा कौन, मौला आपको सलामत रखे। क्या कमाल का मजमा है, अल्लाह आपकी एक एक सांस कोई बात में शुमार फरमाए, जितनी हाजतें लेके आया मौला पूरा फरमाए। मुझसे पहले जितने जाकिर पढ़े हैं, जितने का मैं जानता हूँ, वो सारे मुझसे बड़े जाकिर थे, हर लिहाज से, इल्म में, अमल में, इज्जत में, रिज़्क़ में, हर लिहाज में मुझसे बड़े थे, लेकिन अभी तक आप मुझे इतना अच्छा सुन रहे हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। पाक बीवी आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। बस दो जुमले और कहता हूँ, आप कहेंगे तो आगे पढ़ूंगा, वरना मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम सामने माँ ने लाशी किचन में गई, कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, जाबिर कौन? कहा जाबिर भाई मैं बिलाल हूँ। जी बिलाल भाई। कहा जाबिर बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, तेरे बेड़े में नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, कायनात के सुल्तान, साहिब कुरान, जद्दुल हसन वल हुसैन, कायनात का मौला अली और अली का मौला मुस्तफ़ा तेरे बेड़े में तशरीफ ला रहे हैं। सुन्नी भाई ना बोले कोई रोई नहीं, नवा नवा शिया चुप रहे कोई दुख नहीं, खुद ही सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले कब्र तक गिला करना मेरा हक बनता है। एक हसन रसूल सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये दो बंदे ना बोले कब्र तक गिला करना मेरा हक बनता है। हलाल जादो इस शान में मुस्तफ़ा ने जाबिर के जेड़े में कदम रखा कि मेरे मोहम्मद की दाईं उंगली में अल्लाह का हुस्न था। खुदा आपको सलामत रखे। समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ, मौला आपको सलामत रखे। और मेरे मोहम्मद की बाईं उंगली में अल्लाह का करम था। उतरे पता है ये सारे बड़े क्यों बोले हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये कह रहा था, दाएं हाथ में मौला हसन थे और बाएं हाथ में मौला सखी हुसैन आपको रंग लगाए। दो सैयदों को लेकर, सैयदों के सैयद, सैयदों के सैयद का मतलब समझते हैं? सैयदों के सैयद का मतलब यह है कायनात के सैयद 12 हैं, 12 का सैयद मुस्तफ़ा है। इसलिए मैं मिंबर पे कहता हूँ सैयदों के अल्लाह आपको सलामत रखे। यूँ लेके चले और सेहन बड़ा था माशाल्लाह, जैसे ये बड़ा सेहन है, अल्लाह इस घर को शादोबाद रखे। जनाब जाबिर का रिश्ते का सेहन था, दस्तरखान बिछा, सरकार बैठे और पूरे पिंड को दावत थी, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु लंबी कतार में और भी दस्तरखान पे बैठ के जी आपकी समझ को सदके। कुछ देर के बाद जनाब जाबिर ने वो जो मटन था, बकरा हांडी वो तैयार की, वो आके ऐसे सामने रखी और सामने रख के तो यूँ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह जी बिस्मिल्लाह कीजिए। नाज़र यमीन माशी माला, सदके जहाँ मेरे मुस्तफ़ा ने पहले दाएं देखा, फिर मैं। बादशाह जी आई हैव जस्ट वन डिश। मस्कीन आदमी बस यही है, मैं तो अगे ही डरिया था कि बकरा है कितने पूरा। बादशाह जी फरमाया तुझे भाई जिससे पता है ना कि कोई उंगली हिली थी और चांद टूटा था, वो मेरा जरूर साथ दे। कहा जाबिर तुझे ये डर है कि खत्म हो जाएगा और मुक जाएगा ये डर ही? बादशाह जी मस्कीन आदमी यही डर है। पर मैं फिक्र न कर, अभी मैं यूँ करता हूँ, मुक जाए तो मैं मोहम्मद कैसा। सिर्फ मैंने अपने सदके जाना, मौला आपको सलामत रखे, सिर्फ मैंने जुबान से लौटे टाइम पे कचरा डालना है। कायनात भी खाए तो ये खत्म होने वाला। भाई जो शान रिसालत में बोल रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। हम पे इल्जाम यही है ना कि सिर्फ अली अली करते हैं, खुदा की कसम हम अली अली इसलिए करते हैं कि मुस्तफ़ा ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका। हम किसी की जिद में अली अली नहीं करते, हम मजबूर हैं क्योंकि हम उम्मत है मुस्तफ़ा की। और मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे मौला वो माने जो अली को मौला। भाई ये मजबूरी है, हाँ हम किसी की जिद में नहीं कहते। आप कहते हैं कि शायद शहाबा के मुकाबले में हम अली को मौला मानते हैं। इस जुमले से इन्ने पंडाल से चिट्टी दाढ़ी वाले मेरे 5 बाबे बोलो कुरान की कसम राजी, बाकी गिले को नहीं। मौलवी साहब तू कहता है कि शिया सहाबा की जिद में अली को मौला मानते हैं, 5 बंदे बोला दी हूँ। मुझे कुरान के 30 पारों की कसम एक भी सहाबी ना होता, मौला फिर भी अली ही था। समझो जी आपकी तकलीजा माओ को सलाम है, जुमला गहरा था, कोई बात नहीं, सारे नहीं बोले, अल्लाह आपको सलामत रखे। आके बैठे, फरमाया यही डर है ना, खत्म नहीं होगा। कहा बादशाह जी जब आपने फरमा दिया मैं यूं करूंगा तो खत्म नहीं होगा। बादशाह जी आप अल्लाह के हुक्म के सिवा बोलते नहीं, जब आपने कह दिया तो ऐसा ही है, नो डाउट नो डिबेट। बादशाह जी फिर बिस्मिल्लाह कीजिए ना, सालन तो सामने पड़ा है, आप दाएं देख रहे हैं बाएं देख रहे हैं, मेरा दिल करता जुमला बड़ा है तो हौली आवाज़ से आखा ताकि सारे बोलें और मैं साथ में चेक करूँ कि कौन सा हलाली था जो मेज में बैठ के चुप था। फरमाया सरकार दाएं बाएं क्यों देखते हैं? का जाबर पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूँ, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए?
जब तक के जमा मौला आपको सलामत रखे, जब तक भाई बिस्मिल्लाह कर, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मैं बिस्मिल्लाह करा। मुझे पता है दाद में इसलिए कमी आ गई कि आधा मजमा रो रहा है और मुसलसल रो, जब से मैं बैठा हूं मुझे पता है वो भाई खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, मुझे पता है जब से मैंने इसलिए शुरू किया आपकी आंखें बस नहीं है। 2 मिनट का सिर्फ और फजाइल रह गया, इसके बाद जितना आप चाहेंगे आपका नौकर मसाहिब वाली नौकरी भी अदा करेगा। 2 मिनट सिर्फ जरा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए ताकि मैं जुमला कह सकूं। जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मुस्तफा कैसे गए? चाचा जी मैं आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझ जैसा अनपढ़ शख्स समझ गया कि सरकार का मतलब क्या है, आपका क्या ख्याल है? जाबा नहीं समझा होगा? खुदा की कसम जंप लेके उठा, नारे तकबीर, ये अरब में खुशी की अलामत थी। लुड्डी डाली, दमाल डाली और नारा लगा, जैसे मलान करते हैं। बीवी ने किचन से खिड़की खोली और खिड़की खोल के कहते जाकर मैं मानती हूँ हमारे घर कायनात के सबसे बड़े सरदार आए हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, तू जानता ना मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे 2 ही थे और दोनों की ताज़ा लाशें अंदर पड़ी हैं और तू बाहर दमाले डाल के नारे मार रहा है। क्या कुछ तो ख्याल कर। जब कहना ताज़ा लाशें अंदर पड़ी हैं, फिर कह रहा हूँ शिया काफिर है, मौला अली को ज्यादा मानते हैं, रसूल की इज्जत पे कम बोलते हैं। आपने बुलंद आवाज से बोलकर बताना है हम रसूल को कैसा मानते हैं और हमसे बेहतर रसूल समझ कौन सकता है। हमने रसूल उनसे पूछा जो यहाँ बैठा करते थे, किसी बिल्लियों के बाप से नहीं पूछा कि रसूल क्या है। क्या कहा? अंदर 2 लाशें का, खबरदार अपना कहना अंदर 2 लाशें हैं, 2 ही रख, अंदर जा, कुंडी खोल, कपड़ा हटा और पर जाके इतना कह दे उठो, तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मौला आपको सलामत रखे, इज्जत रसूल पे बोलने वाले जी हैं। अल्लाह अकबर। भाई मौला आपको सलामत रखे, इज्जत रसूल पे बोलने वालों मौला आपको इज्जत में मजीद इजाफा फरमाए, क्योंकि इज्जत कुरान कहता है अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और कुछ मोमिनीन के लिए है, इसलिए मौला आपकी इज्जत में मजीद इजाफा फरमाए। बस चाचा जी माँ अंदर थक सुनेंगे, मुझे पहले बता दीजिए भाई आपने बहुत लंबी मेल सुनी है, कई जाकर पड़ गए हैं, 5:05 हो गए। बानी साहब अभी 2 मिनट गुजारिश है और लो जी वो कह रहे हैं हो गया, ठीक है। अच्छा जी मैं नौकर ना, मेरा मकसद ये था कि जब तक आप गर्मी है थके हुए होंगे ज़ाहिर है। अच्छा ठीक है आपकी इजाज़त है तो मैं 2 मिनट और पढ़ता हूँ। इतना जाके कहते उठो, तुम्हें वो बुला रहा है सदके जावा चाचा जिसने कभी जिंदगी में झूठ। चाचा जी माँ अंदर गई, कुंडी खोली, कपड़ा हटाया, उठो, वो सजद बुला रहा है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तेरे आंसुओं की कसम लिखा है। दोनों बच्चे उठे, लब्बैक 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 याद सुनूंगा। ए चाचा जी जरा मेरे को देखिएगा, ए यूं समझिए, आपको जरा समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये बेड था, ये बच्चे उठे, ये सामने माँ है, अम्मा सैयद पाकफुल यहाँ बैठे बेड़े में बेड़ा ये है ना, अम्मा सैयद वो मर गए थे, उनको क्या पता कि हमारे घर कौन आया। अम्मा सैयद ऊंची आवाज में बोल के बताइए, उसूल दीन अफजल है कि फरूए दीन? अकीदा सही होगा तो नमाज कबूल है ना। उसूल अफजल है। अभी तक मैंने जितनी मजलिस पढ़ी वो फरू की थी, अब जुमला उसूल का है और आपने खुद कहा उसूल अफजल है। इसका मतलब पहले जिस हलाली ने अपने पुत्र को इतनी दाद दी है अब उसमें वाजिब है इतनी दाद दे, क्योंकि पहले मैं फरू पढ़ रहा था, अब जुमला उसूल का है। अम्मा सैयद, अम्मा सैयद, अम्मा वे पुत्रो हाँ हमारे घर में है, बात क्या है? हर हलाली में वाजिब है, पूरी कुव्वत से बोले अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम, जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। बादशाह के हाथों में सबके लगा, जनाब सईद आपके हाथों में सलामत रखे, हर हलाली। चाचा जी मौला आपका साथ सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। अम्मा अम्मा मरने के बाद पता चलता है यहाँ के शहनशाह भी यही हैं और अम्मा वहाँ के बादशाह भी। इतने में जनाब जाबिर आए, आपने कहा मिनट और पढ़ ले इसलिए पढ़ो वरना मेरी मजलिस तमाम हो चुकी थी। जनाब जाबिर आए, दोनों बच्चों को पकड़े, सीधा पाक रसूल की बात कर, बिला तशरीफ मेरे नबी ने यूँ देखा, खुश हैं का बादशाह जी जब से पाक सैयद की जुत्ती मेरे बेड़े में आई है ना, खुशियों को तो ढेर लग गए हैं। कि जाबिर एक बात तो बता। जी सैयद, तो मैं ये बता के ये कौन है और ये कौन है? का बादशाह जी आ मेरा बड़ा मुंडा जी, आ मेरा छोटा, ये बड़ा बेटा ये छोटा बेटा। जो शुरू में मजलिस में बैठा है वो बोले बस, मैं सोच के बता ये कौन है और ये कौन है।
कहा बादशाह जी, बिस्मिल्लाह करता जी, कहा बादशाह जी ये आपका बड़ा बेटा पाक हसन बादशाह है, ये आपका छोटा बेटा पाक हुसैन बादशाह। कहा जाबिर जी सैयद, तो मैं गौर से सुन जी बादशाह जी आपकी ज़ुबान से अल्लाह बोलता है, बिस्मिल्लाह कीजिए मैं सुन रहा हूँ। कहा जाबिर ये जो मेरा हसन है ना, जी बादशाह ये बड़ा हो गया। अच्छा बादशाह मेरा हुसैन भी बड़ा होगा। अच्छा बादशाह मेरे हसन की शादी होगी। ठीक है बादशाह मेरे हुसैन की भी शादी होगी। अच्छा बादशाह अल्लाह मेरे हसन को देगा बेटी। ठीक है बादशाह उसका नाम होगा फातिमा। ठीक है बादशाह अल्लाह मेरे हुसैन को देगा बेटा। जी बादशाह उसका नाम होगा अली, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। अच्छा बादशाह इधर से हसन की फातिमा बड़ी होगी। ठीक है बादशाह इधर से हुसैन का अली बड़ा होगा। ठीक है बादशाह अल्लाह मेरे बेड़े में फिर से अली और फातिमा की शादी करेगा। हाय हाय मौला आपके हाथों में सलामत रखे, पाक मौला आपकी माँ से कहे। यार आपका क्या कहने, खुदा की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, मजमा इतना अच्छा है, मजमा इतना साहिब इज्जत है कि आप अच्छा सुन रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे, पानी की नीयत बोल रही है। अल्लाह इस घर में ऐसी दुआ है जिस इससे बड़ी दुआ मेरी 25 साल की पढ़ाई में नहीं है। 10 साल मुझे मिंबर पे हो गए, 15 साल में पढ़ते हो गए, 25 साल मेरी स्टडी हो गई। 25 साल में इतनी दुआ बड़ी मेरी जिंदगी में नहीं है। मेहरबानी सारे आमीन कह दे। अल्लाह इस घर वालों की नस्लों में जिक्र हुसैन बाकी रखे, इससे बड़ी दुआ है ही नहीं कुरान की कसम, कोई दुआ नहीं। मौला आपको सामने के सर उठाइए और जुमला सुनिए। अच्छा बादशाह अली और फातिमा की शादी होगी, यानी पाक मौला सजाद की शादी होगी। अच्छा बादशाह जाबिर फिर ना अल्लाह इस पाक जोड़े को तो पुत्र देगा। अच्छा बादशाह उसका नाम मोहम्मद है, तौरात में बाकिर लिखा है। अच्छा बादशाह वो ना जो बाकिर होगा ना वो बड़ा होके ना बाजार में तुझे मिलेगा। अच्छा बादशाह उसे मत्थे पे हाथ रख के कहना कि नाना रसूल सलाम कहता था। भाई जो शिया बैठा है वो उसके यूज ना करें, लेकिन जाबिर याद रख जी बादशाह मैं जब तुम मत्थे पे हाथ रख के मेरे बाकिर को मेरा सलाम पहुंचाएगा ना तो तेरा हाथ कांपेगा और तू रानों पे हाथ मार के पिट के कहेगा वो मैं मर जावा, पहला भी मोहम्मद था आखिरी भी मोहम्मद है। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। जाबिर याद रखो मेरा बाकिर दस्तार में मुझ जैसा, रफ्तार में मुझ जैसा, चाल में मुझ जैसा, नक्शे नगार में मुझ जैसा, कलर में मुझ जैसा, बोलने में मुझ जैसा, चलने में मुझ जैसा, हत्ता के जब तू करीब हो के उसके बदन की खुशबू सूंघेगा तो वही खुशबू आएगी जो मुझ मोहम्मद के बदन अतहर से आती है। कुरान दी कसम चाहता रही मैं जुमला पढ़े बड़ा ही सोना सुना लोग, लेकिन एक मुझे तसल्ली एक प्यास बाकी रह गई, आपने गौर नहीं किया। जाबिर का मुंह खुलता रह गया। मैं आपकी जुबान में फिक्रा कहता हूँ ताकि बच्चे भी समझे। जाबिर कहता है या रसूल अल्लाह हसन है आपका दोतरा। मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना भाई पुत्र, मैं नवासे को दोतरा कह रहा हूँ ताकि आप समझे। बेटा समझ आ रही है आपको? हसन है आपका दोतरा और हसन का दोतरा होगा बाकिर। हुसैन है आपका निवासा और हुसैन का पोता है बाकिर। बादशाह जी अभी हसन हुसैन बच्चे हैं, मैं इनके बच्चों का बच्चा और मेरा पीरा मेरी जिंदगी इतनी लंबी कर दी। तो क्या बात है मेरा लाजपाल बादशाह, मेरा मुर्शदा इतनी लंबी बिस्मिल्लाह इतनी लंबी मेरी जिंदगी हो गई, यानी मैं आपके नवासों का नवासा देखूंगा और वो भी जवान। मेरी जिंदगी एडी लंबी कर लिया मेरे पीरा। हूँ सारे बोलना है, मैं आराम जोर नहीं लगाऊंगा। सरकार मैं जाबिर पहचान, तुझे तेरा वास्ता याद है कि उस जात के लिए जिसके खाने पे खड़े फरमाया मैं उस जात का बाबा हूँ, मैं ज़हरा का बाबा हूँ। तू मुझ सैयद की मोहब्बत में 2 बच्चों की मौत पर सब्र के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। मैं सबके मौला आपको सलामत रखे। आखिरी मर्तबा कुरान की आयत पढ़नी है सबने, सब भाइयों ने। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग मुसलसल हो रहे हैं, आपकी आंखें बरस रही है, इसलिए दांत की आवाज में कमी आ गई, लेकिन मेहरबानी करनी है इस आखिरी जुमले पे हर भाई ने मिलकर पूरी कुव्वत से मेरे साथ कुरान पढ़ना है। कहता है वही बंदा जो पहले आया था जिसने कहा था जाबिर क्यों कहता है रसूल को मेरे बेड़े में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे शहर में आओ, मेरी दावत में आओ, वही बंदा भाई सामने आया। वो बंदा कौन है आप मेरे बातों समझ जाएंगे वो कौन है। वो बंदा कहता है जाबिर आओ जी उनके लुटियां पाना हक बनता है। पुत्र भी लभ गए, उम्र भी लंबी हो गई, बेटे भी मिल गए, जिंदगी भी लंबी हो गई, बेटे भी मिल गए, जिंदगी भी लंबी हो गई। जनाब जाबिर मुस्ताक चुप कर, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरी जिंदगी लंबी हो गई, कहा तो खुश क्यों है, कहा मैं इसलिए खुश हूँ पहले मेरी जिंदगी इंसानी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी कुरानी जिंदगी है। आपको सारे बोला है कुरानी जिंदगी कैसे, कहा तुमने कुरान से पढ़ा नहीं, मोहम्मद जो थे उसे और मेरा नबी जिससे रोके उसे
चाचा जी मुझे आपकी सफेद दाढ़ी की कसम है, मेरे मोहम्मद ने रोका था, मेरे हुसैन को तमाचे न मार। मैं बिस्मिल्लाह मौला उसका कबूल फरमाए, आपकी हाय कबूल फरमाए। मसाइल मैंने पढ़ना क्या है, आप तो फजाइल में रो रहे थे, आपकी ऐसी मार्फत है, पूरा फजाइल मैंने मुश्किल से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग रो रहे थे। ये नाम अकबर साहब है, ये मेरे पहले फिक्र से लेकर अब तक मुसलसल रो रहे हैं, कभी अपने पुत्रों के गम से ना रो रहे जो फातिमा ज़हरा के बेटे को रोने आया। चाचा जी मैंने एक सवाल आपसे पूछना है, और ये सवाल मेरी माएँ सिर्फ सुनेंगी, मेरे जो बाबे बैठे हैं ना बुजुर्ग, ये जवाब देंगे। नौजवानों की मर्जी हुई तो हाय करें, ना हुई तो गिला नहीं। बुजुर्ग कोई चुप ना रहे, और जितनी मेरी माएँ बैठी हैं आपने तवज्जो फरमानी है कि आपका पुत्र क्या कह रहा है। मेरी बहनों की अपनी मर्जी, इस फिक्रे पर हाय कहें ना कहें। चाचा जी फिक्रा ये है, अपने पुत्रों को दिखाए सारे, फिक्रा ये है कि क्या ये बात सच है कि जब इंसान पे चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े फिर उसे माँ बड़ी याद आती है। मैं बिस्मिल्लाह मौला आपका जी सबके जमा तो जी सारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग रो के कह रहे हैं कि पुत्र तेरी गल ठीक है। मैं जुमला फिर तो आता हूँ, हो सकता है ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं हो सकता है इनकी तवज्जो ना हो। पुत्र मैं आपके लिए फिर कहता हूँ, जब इंसान पे बिस्मिल्लाह करना कभी ना रो भाईजान, चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े भाई, चाचा जी फिर उसे माँ याद आती है। मुझे आपके गिरिए की कसम है, असगर को दफन करके दामन झाड़ के मदीने की तरफ मुंह करके चारों के हुसैन कहता है अम्मा मैं थक गया। अम्मा मुझे प्यास खा गई। मैं बिस्मिल्लाह करा हौसला भाई मौला आपका कुछ गुरु है, आपकी रूहानियत बता रही है कि आप मुसाहिब सुनने के मूड में बैठे हैं। आपको पता है कल 18 जेठ थी, आपको पता है, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही से मुझसे सुन रहे हैं। मौला आपका पुरसा गुरु है, अम्मा मुझे प्यास खा गई। चाचा जी जो आप बुजुर्ग बैठे हैं, आपने एक नाम सुना होगा मिंबर शिया पे हाफिज किफ़ायत हुसैन मरहूम का, मौला आपको सामत रखे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। ये उनकी मोहर याफ्ता रिवायत है जो मैं जनाब की खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं जब मेरे मौला ने कहा ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, अचानक भरा हुआ पानी का जाम 10 मुहर्रम को भाई हुसैन के सामने आया। 2 बंदे ने हाय की है, बाकियों ने गौर नहीं किया कि पानी आया भी तो असगर दफनाने के बाद आया। यूँ मेरे मौला ने देखा, तू कौन है? कहा मैं अजनबी परदेसी हूँ। पानी क्यों लाया? कहा तूने भी कहा ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, तो मैंने लिया। इमाम फरमाता है यहाँ हर कोई मुझे मार रहा है, यहाँ लोग मुझे सलाम के लायक नहीं समझते, तू पानी लाया और कह रहे बस ऐसे ही ले आया हूँ। असल बात बता वजह क्या है? कहता है असल पूछना है। कहा पूछ। तो जी सारे हाय कर रही है। कहता जब तूने कहा था ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, तेरी आवाज़ में कोई दर्द ऐसा था कि मुझसे रहा नहीं गया। जिसे दर्द का मतलब आता है वो तो हाय कर रहा है, जिसे पता है कहीं अकबर की बरसी का दर्द था, कहीं असगर के तीर का दर्द था। कितना बड़ा पुरसा पेश किया मेरे बड़े भाई ने अबू आदिल साहब ने जनाब इसकर का। उसके बावजूद आप इतना मसाइल सुन रहे हैं। आपकी पकीज़ा माँ को सलाम है जिन्होंने ऐसी आपकी पकीज़ा मार्फत तरबियत की है मेरे मोहतरम सामिन का। दूसरी वजह ये है, एक दूसरे लिए कि जब तूने कहा ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, दर्द बड़ा था तेरी आवाज़ में। और दूसरा चूँकि मेरे भाई ने बताया ना कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों के घर हैं, इसलिए सुन्नी भाइयों के मदद में भी रोना सवाब है। मातम शिया करते हैं ना, रोना इबादत सुन्नी भी समझते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है हो सकता है कोई मेरा सुन्नी भाई हाय कर दे, इबादत में मजीद इजाफा हो जाएगा। कहता है दूसरी वजह पानी लाने की ये है, मैं उम्मती हूँ मदीने वाले मोहम्मद का। मेरे नबी का फरमान है जब कोई जख्मी पानी मांगे नमाज तोड़ के भी उसे पानी करना चाहिए। और जख्मिया तू तो अजब रंग का जख्मी है, तेरी पूरी कमीज भी खून में डूबी हुई है, तेरी दाढ़ी पर भी खून लगा हुआ है। इस फिक्रे पे कौन सा शिया माँ का बेटा जो हाय ना करे? अदादारों मेरे माँ बहनों उसे क्या पता कमीज वाला खून अकबर की बरसी का है, दाढ़ी वाला खून असगर के तीर का है। ये ना बिस्मिल्लाह भी मेरे भाई पढ़े थे ना कि हुसैन ने वो असगर वाला तीर जो है खून वो अपनी दाढ़ी में मारा था, उसे क्या पता? ए यूं देखा, इमाम फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, ले जा मैंने पीना नहीं। कहता जख्मिया अभी तूने खुद तो कहा था कि अम्मा मैं प्यासा हूँ, अब जब मैं पानी लाया तो तू कहते मैंने पीना नहीं। मैंने रफ्तार मसाइल की कम क्यों की है? हमारा मकसद आपको रुलाना है, मारना नहीं है। मेरा जी चाहता था कि आप एक बार सांस ले लें, आपने सांस ले ली, अब मैं मसाइल पढ़ता हूँ। इमाम फरमाते हैं
पीना नहीं। कहा क्यों? मौला फरमाया मेरी कोई मजबूरी है। कहता ज़ख्मिया मुझे मजबूरी बताएगा? इमाम फरमाया एक शर्त है। ना कौन सी? इमाम फरमाया अगर मैं तुझे अपनी मजबूरी बताऊँ वादा कर मैदान छोड़ के चला जाएगा। चाचा जी उसका वास्ता देखिए और अपनी हाय देखिए। कहता तू मजबूरी बता मैं चला जाऊंगा, तेरा मेरा यसरा वाला मुस्तफ़ा ज़ामिन है, तेरा मेरा नबियों को ज़ामिन हुआ, तू बता मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर मसला मिला। इमाम रोक कहता भैया बता तेरे हाथ में क्या है? कहता पानी का जाम। इमाम ने इशारा किया, फरमाया वो क्या है? कहता टीला, जिसे आप करबला का टिब्बा कहते हैं। इमाम फरमाया जाम हाथों में ले जा, टिब्बे से हो के आ जा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जख्मी गरीब पानी क्यों नहीं पीता। चाचा जी मुझे पता है बुजुर्ग बैठे हैं, आपके जवान बेटे हैं, मेरी ऐसी माएँ हैं जिनके जवान बेटे हैं, जिनने मेरे माँ पे उसे बुजुर्ग बेटे हो अपना पुत्र समझ के मुझे माफ करना और साथ में दुआ भी करना कि अल्लाह आपके बेटों की खैर फरमाए। जो भी ये टिब्बे के करीब गया ना चाचा जी, इसने भरा हुआ जाम जोर से मट्टी का फेंका और अपने मुंह पे मातम करके मौला हुसैन से कहता जख्मिया पानी वाली गल नहीं छड़, हाथ उठा दुआ मांग। इमाम फरमाया देखा क्या है? कहता कोई 18 साल का जवान है जिसके सीने में बंसी का भाई टूटा हुआ है, जिसकी तारी तारी फूट रही है। कहता मुझे वादा शरीक की कसम इतना सोना जवान मैंने अल्लाह की भरी। हौसला हौसला भाई, हौसला हौसला भाई, हौसला भाई, हौसला 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 भाई, हौसला भाई, हौसला भाई, हौसला। मैंने आपको पहले कहा था हमारा मकसद हौसला हौसला। भाई ले जा भाई, दूसरे कमरे में लेता भाई, दूसरे कमरे में लेता। यहाँ भी आवाज आएगी तो तू सुन के बर्दाश्त नहीं कर सका, अल्लाह जाने फटा सीना सकीना ने कैसे देखा होगा। तू आज 1400 साल के बाद अली अकबर की बर्शी बर्दाश्त नहीं कर रहा, अल्लाह जाने ज़ालिम ने कैसे सब्र किया होगा। अली अकबर की बर्शी देखे क्या कहा फरमाया मुझे वहदाहुल्लाह, हौसला भाई, वहदाहुल्लाह शरीक की कसम मैंने इतना सोना जवान चाहता नहीं अल्लाह की भरी कायनात में आज तक नहीं देखा। भाई हौसले के सामने से भाई को पानी दो, मैं अगला जुमला कहूँ। इमाम रो के कहते हैं दुआ कौन सी? और जिन्हें प्यो बैठे हो अपने पुत्रा की जिंदगी में हयाती वास्ते एक करी हाय गया कदर थे जब कहा दुआ कौन सी? कहता दुआ मांग इसकी बर्सी से पहले इसकी माँ भी मर गई हो, इसकी बच्ची से पहले इसका बाप भी मर गया हो। कहता जिसका इतना सोना पुत्र भरी जवानी में दुनिया में मारा जाए वो ना माँ जीने के लायक रहती है, वो ना बाप जीने के लायक रहता है। मुझे डर आ रहा है मसाइल पढ़ते हुए कोई मर न जाए, इसलिए मैं जल्दी इशारा करके आपको सलाम करता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन जब कहा ना इसकी माँ मर गई हो बाप मर गया, मेरे मौला रोक कहते हैं अगर मैं तुझसे कुछ कहूँ यकीन करेगा? कहता है तेरा चेहरा बताता है तो किसी सच्ची माँ का बेटा है। तू जो कहेगा मैं मानने को तैयार हूँ। मेरे मौला रोक कहते हैं इधर कहते मसाइब वही मेरे लिए खड़े, मेरे मौला रोक फरमाता है वो जिसकी बर्शी तुझे बर्दाश्त नहीं ना मेरा सगा बेटा है। और मैं आपसे पूछूं आपने किसने हाय की? हर हलाली कहेगा हमने अकबर पे हाय की। ना कुरान मिंबर पे मेरे सर पर रख वो अकबर पे नहीं रोया जब कहा ना ये मेरा सगा बेटा है, वो अकबर पे नहीं रोया। मातम करके मौला हुसैन से कहता जख्मिया अगर ये तेरा बेटा है जिसे दफन कर रहा था वो कौन है? इमाम फरमाया वो मेरा 18 साल का था और ये मेरा 6। हौसला 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 या ज़हरा। पाक बीबी आके देख तेरे बच्चों पे कैसे रो रहे हैं, कोई अपनों को ऐसे नहीं रोता जैसे ये तेरे औलाद को रो रहे हैं। पाक बीबी हम सब पे राजी जाना अज़ादारों की बिस्मिल्लाह कर। हौसला 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 मौला आपका पुरसा गुजरे। अगला जुमला सुनोगे जब कहना ये मेरा 6 माह का है, एक बार सांस ले लो, एक बार सांस ले। ये मेरा 6 माह का है, वो मेरा 18 साल का। एक बार सांस ले लो, अल्लाह आपका गुस्सा दूर फरमाए। आधा मिनट और पढ़ता हूँ आपकी मोहब्बत में, क्योंकि फजाइल मैंने आपके लिए पढ़ा। मेरी माएँ बहनें ये ना कहें कि हम पुरसे के लिए आई थी और तूने थोड़ा पढ़ा। अपनी माओ बहनों की इज्जत की खातिर आधा मिनट और पढ़ूंगा और आपको सलाम करके जा रहा हूँ। एक बार सांस ले लें। कहा ये मेरा 6 माह का, वो मेरा 18 साल। ये कांपने लगा। इमाम फरमाया क्या हुआ? सारे वही हाय करनी। क्या हुआ? आपने सांस लिया अब हाय करनी। हुआ क्या? कहा जख्मिया जब तूने कहा था ना अम्मा मैं प्यासा हूँ
मैं जाम लिए दरिया के किनारे पहुंचा था, वहां मैंने एक लाशा देखा था जिसके साथ बाजू नहीं थे। वो कौन था? इमाम फरमाया मेरा सगा भाई था, बड़ा वफादार था, हौसला उसी के सहारे मैंने बहन की हौसला भाई हौसला उसी के सहारे मैंने बहनों को जंगलों का रुख करवाया था। अदाकारों हैरान हो कहता है जख्मिया, वो तेरा 18 साल का बेटा, ये तेरा 6 माह का बेटा, वो तेरा 30-35 साल का करियर जवान भाई इतने करीबी रिश्ते जिबा करवा के अब भी सबर का पहाड़ बने खड़ा है। मन अंता, बता तू कौन है? इमाम फरमाया बताता हूँ, वादा याद है? कहता याद है, तू बता। मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा जो घर से मातम के नीयत से आया है, बुलंद आवाज से हाय हुसैन से मातम करना। जब कहना पता, इमाम रो के कहते हैं तुझे जंगलों में जिसकी हदीसें याद है ना, मैं उसी का नवासा हुसैन और ज़हरा का बेटा मैं हूँ, अली का लाल मैं हूँ। जब कहना मैं भाई अभी नहीं, जब कहना मैं हुसैन हूँ। इसने मौला के कदमों पे सर रखा, दोनों पांव चूमे खड़ा हुआ। हूं जरा बंदा रोना है, एक बारी हाय जरूर करे, रो के कहता मौला तुझे तेरी माँ की टूटी पसलियों का वास्ता, मेरे सामने पर्दा ना डाल, मुझे वाजे करके बता, कहीं बंशी वाला तेरा अकबर तो नहीं है, कहीं 6 माह वाला तेरा असगर तो नहीं है, और कहीं बिन बाजू वाला और तेरा अब्बास तो नहीं है। इमाम फरमाया तू सही समझा, अब तूने समझ लिया ना, अब तेरा वादा था, अब यहाँ से चला जा। इमाम से फरमाता मौला एक बात तो बता, एक बार सांस लो भाई, मौला एक बात ही सांस लो, मौला एक बात तो बता, आपकी मोहब्बत में एक फिक्र और रहता हूँ, बस करो ज्यादा हो गया, चल एक लफ्ज क्या जी, एक लफ्ज क्या? तो भाई कह रहे हैं कोई बात। अच्छा चलो भाई कह रहे हैं कि उसकी तबीयत नासाज है, एक फिक्र कह के मैं आपको सलाम करता हूँ, अल्लाह इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज है, मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, बस यही मैं सलाम करता हूँ। बस इसी बात में भाई आपने जनाजा ले आना है, जो बैठे खड़े हैं सखी हुसैन दा वास्ता जे एक करी हाय कह जे, कहता है मौला मुझे कहता क्यों है यहाँ से चला जा? इमाम रोक कहता सोच के बता, घर में तेरी 4 साल की बेटी है। कहता जी मौला है। फरमाया वो तू जब घर से निकला था तेरे साथ सहन में आई थी ना? जी मौला। वो तुझे कहती ना बाबा जल्दी आना, तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा जल्दी आना, तेरे बगैर मुझे घर अच्छा नहीं लगता। फरमाया जब से तू निकला है हर रोज दरवाजे पे आती है और आके कहते बाबा आज भी शाम हो गई, बाबा तू आज भी नहीं आया। और सलाम वाले इसीलिए हम रोते हैं, और जिस हुसैन को उम्मत की बेटियों का एहसास था उसके सामने शिमर सकीना को तमाचे मारता रहा, रो रो के कहती रही बेटी चचा और मेरे बाबा को चलाने वाला कोई नहीं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मोहम्मद के बेटे का जनाजा आ गया, मातम हुसैन। सरमार कजावे पे ज़ैनब ने किया जख्मी, इस फैल से साबत है जंजीर का मातम या हुसैन। रसूल की या हुसैन।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ الزکاة ونتمتع فی طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم فرجا ہمنا وغمنا یا کاشف القربن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین یا بالفضل العباس یا سکہ سکینہ یا حجاب المصائب ادرکنی اغثنی فی سبیل اللہ یا احمد بحق محمد یا اللہ بحق علی فاتر السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا موسم بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام پاک مالک محمد و اہل بیت اتحار دی عظمت صدقے بانیان دا بچایا ہویا پر خلوص صفح ماتم اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور پاک مالک محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے اس پاک ذکر دے صدقے پاک مالک اس کا نشاد و آباد رکھ محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے پاک مالک اس گھر دے جتنے دنیا فانی تو کوچ کر کے پاک مالک سب دے درجات میں بلند فرما محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے انہاں دے رزق عزت وچ وسعت عطا فرما پاک مالک جتنے مومنین و مومنات کرب و جوار تو دور دراز تو اس پاک دربار دے اندر تشریف فرمائیں پاک تو سمیع بصیر ذات ہیں ہر مومن دے دل میں بہتر سمجھنے ہر مومن دی دلی خواہش پوری فرما پاک مالک جو مکروز ہیں قرض غیب چو عطا فرما پاک مالک جو بے گھر ہیں انہوں نے گھر عطا فرما پاک مالک جو بیمار ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما بالخصوص پاک مالک میرے کزن بیمار نے میرے پھپھو جی بیمار نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے عزیزم دا بیٹا بیمار صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما پاک مالک محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے روئے زمین تے جتھے جتھے بھی ولی اللہ پڑھن والا بیمار صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما پاک مالک صدقہ محمد و اہل بیت اتحار دا صدقہ کر کے بھائی جان دعا ذمہ لارے نے پاک مالک قبول فرما پاک مالک دن محمد و اہل بیت اتحار دی ذات دا واسطے جتنے مومنین و مومنات دل وچ حج زیارت دی خواہش رکھتے نے اذن سفر عطا فرما ہر مومن پاک مالک امام رضا علیہ السلام دے مقدس خزانے جو وافر رزق عطا فرما تاکہ عزاداری امام حسین وچ انہوں نے مسئلہ نہ بنے پاک مالک جس جس جگہ تے عزاہنے ہیں عزادار ہیں پاک مالک صاحب دی عزت محفوظ فرما محمد و اہل بیت اتحار دے صدقے مادی حادی امام دے ظہور تجیب فرما ساڑی کو نگاہ رکھنو پاک مالکہ دی زیارت کو مشرف فرما مری حسین حسین کر دے اٹھی بھی علی علی کر دے دامن پنجن دے بارہ اللہ ہوئے ہاتھ سے گنہگار اللہ ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد متوجہ زیارت جناب نبی کریم السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نیت کی تھی زیارت جناب نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین والسید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نیت کی تھی زیارت ولایت کے 8 میں امام رضا علیہ السلام کی پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا معیز شیعت وزوار فی یوم الجزائر السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایوہ
مدفون بأرض طوس السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد نیت کی تھی زیارت جانا اپنا مادی و حادی امام کی پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اللمان 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 من فتنة زمان من شر شیطان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ فرجکا سال اللہ مخرجک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بر دشمنان اہل بیت رسول لعنت بے شمار